In IPC mechanism, we have seen that we are having processes which are concurrently existing in the RAM, and these processes, they interact with each other. And we have seen the examples when one of the processes, let us suppose P1, is giving some data to another process, that is P2. So this data can be provided to P2. We are having some situations where a reading writing problem is there, like one of the processes, suppose P1 is writing some data on the disk in the form of a file, because when we say file, so that means file must be existing on the disk. So it is writing some data on the file. This data is being taken by another process P2. So P2 is performing reading operation where this one is writing the data. जब नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी में या जावा में, तो व्हाट वी बेसिकली डू, वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम that is creating a data file on the disk. We are letting the same program to take that data from the disk. But when you are having any practical implementation, say you may be having a web application, maybe ERP system, maybe a railway reservation system. So there we know that multiple processes are simultaneously running, and some of the processes must be writing some data on the disk, and some of the other processes must be reading that data from the disk. That means when we are sharing the file between two programs, because you may be having the examples where you are sharing the file in a single program. I mean, the same program is writing some data into the file, and then the same program is reading the data or taking the data from that file. But you can have the situation where two parallel programs are running, not necessarily on the same computer, but they may be working on some different computers, where one computer is writing or creating some data in the database. The other program may be residing on some other terminal or on other computer, may be taking the data from the database. So in database too, you must have studied the atomicity of operations. When reading operation is going on, the writing should not happen, otherwise wrong data will be taken. Because if two or three information pieces are being written by any program, and say one of the piece has been written and it is still in the process of writing the remaining two pieces, but in the meantime the other program which has to take the data from this database is taking or has started taking the data from the database. So what will happen when the writing is still going on? The reading operation has begun. That means the data will be having in the inconsistent form, because जब वो commit हो जाता database के ऊपर write हो जाता, तो वो शायद finally data आता, उसके बाद अगर उस data को उठाया जाता तो वहाँ inconsistency नहीं आती. लेकिन अगर data जो है writing के duration में ही उठा लिया जाए, तो हो सकता है कि data अभी write किया नहीं गया हो, partially data ही write किया गया हो, in the meantime it is taken by some other process or some other program. So that will create a problem, क्योंकि उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी और वो डेटा जो है वो फिर अवेलेबल नहीं होगा उसको प्रोग्राम को जो रीड कर रहा है. तो इट मीन्स कि देयर आल्सो वी इंश्योर कि वहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म इज देयर कि जब वो राइट कर रहा हो तो रीडिंग ऑपरेशन शुड नॉट हैपन. सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है. तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस सिचुएशन में देखें वेयर वी आर लर्निंग सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग और वी आर लर्निंग हाउ multiple processes can coexist in the RAM and how can they interact with each other. So obviously the question arises ki how the data being written by one process is to be taken by other process. तो उसके लिए one common mechanism is we can take a regular file. एक हमने regular file ले ली, फाइल को ओपन कर लिया रीडिंग मोड में इस प्रोसेस के लिए और राइटिंग मोड में इस प्रोसेस के लिए. P2 जो है इज राइटिंग द डेटा इनटू दैट फाइल और P1 जो है उसको रीड कर रहा है. तो इसमें हम ये जरूर श्योर करेंगे कि जब तक राइटिंग कंप्लीट ना हो जाए P1 शुड नॉट टेक द डेटा. P1 को डेटा नहीं लेना चाहिए या रीड नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए हमें लॉकिंग मैकेनिज्म लगानी पड़ती है. ये चीज आसान हो जाती है अगर इसकी बजाय हम पाइप्स को यूज करें. तो पाइप्स भी एक जिस तरीके से जैसे फाइल्स होती हैं वैसे ही पाइप्स हैं. जब हम पाइप क्रिएट करते हैं तो कुछ इस टाइप का उसका सिंटेक्स है, जिसमें ए जो है एक एरे है, इंटीजर एरे है, कितने एलिमेंट्स की, 2 एलिमेंट्स की, जिसके एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, A0 और A1.
जिसमें एक रीडिंग एंड के लिए है और एक राइटिंग एंड के लिए है। तो होना क्या चाहिए कि अगर हम कोई, जैसे आपने देखा कि अगर हम कोई प्रोग्राम P1 जो है इज क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस P2, so what is happening, if we are having say pipe system call having occurrence in P1, so when the pipe is executed a pipe will be created. Now this pipe will also be available to P2 also, इसको भी अवेलेबल होगा यही पाइप जो P1 को असाइन अवेलेबल है। तो अब ये कॉमन पाइप है और कॉमन पाइप ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं फिजिकल पाइप से क्या होता है, अगर कोई टैप में आप लगाते हैं तो ऑन द अदर एंड यू आर एबल टू टेक द वाटर, ठीक है। तो from one side, from one end you are inserting the water and from other side you are taking that water. In the same way that it is happening in case of data, कि एक प्रोसेस जो है वो एक तरफ से उस पाइप के अंदर जो है डेटा इंसर्ट करेगा और दूसरा प्रोसेस जो है अदर साइड से उस डेटा को रीड आउट करेगा। अब इस केस में अगर हम ऑर्डिनरी फाइल को देखें कि अगर हमने कोई फाइल बनाई होती और बजाय यहाँ पाइप को यूज करने के हमने एफ ओपन टाइप की कोई चीज यूज करी होती, हमने फाइल को ओपन किया होता, तो उस केस में अगर P2 जो है उसको भी यही फाइल हैंडलर FP अवेलेबल है, P1 को भी यही अवेलेबल है, मतलब एक शेयर्ड फाइल है। तो अगर P1 इसके अंदर कुछ लिखेगा और P2 को उसे रीड करना है, तो जब तक P1 राइटिंग कंप्लीट ना कर ले तब तक P2 जो है शुड नॉट रीड दैट डेटा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये वरी करनी पड़ेगी, ये इंश्योर करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के लॉजिक में कि P2 should be allowed to take the data from this file FP only when the data is completely written। तो हम क्या करते हैं कि P1 से डेटा राइट करेंगे, फाइल क्लोज कर देंगे और P2 जो है उस फाइल को ओपन करेगा, उसमें डेटा को रीड करेगा। तो इस तरीके का ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा और आपको एक केयर करनी पड़ेगी कि कभी ऐसा ना हो कि अगर P1 ने डेटा लिखा ही नहीं हो लेकिन P2 जो है उसको ओपन करके पढ़ना शुरू कर दे, तो ये तो वो सिचुएशन हो गई कि फाइल जो है उसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम दैट फाइल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज जो है इजी हो जाती है व्हेन वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइप, क्योंकि पाइप जो है वो फाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। अंतर इतना होता है कि फाइल में वी आर हैविंग ओनली वन फाइल हैंडलर और one file pointer, whereas in case of pipe we are having two handlers, one for the reading end, other for the writing end, क्योंकि हम उसको इमेजिन ही करते हैं कि ये क्यू की तरह है जिसके दो एंड हैं, एक एंड से डेटा इंसर्ट होगा, दूसरे एंड से डेटा टेक करेंगे, उसको रीड करेंगे। अब क्योंकि पाइप जो है वो कॉमन है अवेलेबल टू P1 एंड P2, सो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर कि बोथ द एंड शुड नॉट बी अवेलेबल टू अ सिंगल प्रोसेस। अगर रीडिंग एंड जो है P1 को अवेलेबल है तो राइटिंग एंड P1 के लिए क्लोज हो जाए, P2 के लिए जो है फिर राइटिंग एंड जो है वो ओपन हो जाए और रीडिंग एंड क्लोज हो जाए, मतलब अपोजिट ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि तभी ऐसा है, वरना आपने देखा कभी कि दो टैप के साथ बीच में आप एक पाइप लगा दें जिसमें जो उसका आउटलेट है उसको भी आप एक टैप से लगा दें और दोनों टैप ऑन कर दें, तो व्हाट विल हैपन, तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर जो है लेफ्ट साइड की टैप से अगर आपने उसका एक सिरा जो है लगाया हुआ है तो राइट साइड की पाइप जो है वो फ्री होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टेक द वाटर आउट। और अगर आपने लेफ्ट साइड का जो है राइट साइड का सॉरी अगर टैप लगाया है तो लेफ्ट साइड से उसका जो आउटलेट है वो फ्री होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक द वाटर आउट। तो इसका मतलब है कि पाइप जब भी हम शेयर करेंगे तो उसमें एक एंड जो है एक प्रोसेस को अवेलेबल होगा रीडिंग के लिए, वहां पे दूसरा एंड उसका क्लोज कर देंगे और दूसरे प्रोसेस के लिए जो यहाँ पे क्लोज किया है वो यहाँ ओपन रहेगा और लेकिन दूसरा वाला एंड जो है वो क्लोज रहेगा। तो यू कैन इमेजिन कि एक पाइप जो है उसमें दो ऑपरेशन हो सकते हैं रीडिंग और राइटिंग के, तो अगर राइटिंग एंड जो है वो इस साइड का खुला हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ रीडिंग एंड क्लोज होगा और उस केस में रीडिंग एंड जो है वो इधर का खुला होगा और राइटिंग एंड इधर का क्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा को हम शेयर करेंगे। एडवांटेज इससे क्या होता है कि पाइप में अगर डेटा अभी एक प्रोसेस ने नहीं लिखा है, जो राइटर प्रोसेस है उसने भी पाइप के अंदर डाटा नहीं लिखा, बट इन द मीन टाइम जो रीडर प्रोसेस है वो डेटा रीड करने चला गया पाइप से, तो फाइल के केस में तो ये एनॉमली आती, क्योंकि फाइल में आपको वहां पे दिक्कत हो जाती है, आपको लॉजिक ऐसा लगाना पड़ता कि आप प्रोग्राम में ही लॉजिक लगा के ऐसा श्योर करते कि दूसरा वाला प्रोसेस जो है रीड ही ना कर पाए अगर राइटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे इस केस में पाइप के केस में यू डोंट नीड टू बॉदर, क्योंकि पाइप जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ इट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये जो मैकेनिज्म है ये खुद ही अपने आप इस बात का रखती है ख्याल कि अगर आपने एक प्रोसेस जो है इज ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम पाइप और अगर उसमें डाटा भी राइट नहीं किया गया है
तो ये वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आके इस एंड पे वेट स्टेट में चला जाएगा. इट विल कीप वेटिंग, इट विल स्टिक इनटू अ लूप and it will keep waiting for the data to be inserted from other end so that it can take the data out from this end. तो यहाँ पे जो synchronization है between reader and writer, that you don't need to maintain with by inserting a appropriate logic in the program. Rather, pipe mechanism itself is taking care of this fact कि it is providing a sync between reader and writer. तो जब तक जो है writer is not completing its operation, reader is not let to take the data out from that pipe. ठीक है. तो ये ऑपरेशन जो है अगर फाइल के थ्रू भी हम डेटा शेयर कर सकते हैं, पाइप के थ्रू भी डेटा शेयर कर सकते हैं, where one process can provide the data to some other process. The same thing we can do with file concept also, which we are using in the programming. लेकिन वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक प्रोग्राम अपना डाटा लिख रहा है तो जब तक उसका ऑपरेशन कंप्लीट ना हो, that file should not be used by other program for taking the data or for reading the data. ठीक है. But this is not required in case of पाइप. तो पाइप एज ए सिस्टम कॉल हमें अवेलेबल है और ये भी एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की मैकेनिज्म है. मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि दो तरीके से हम एक प्रोग्राम जो है वो किसी और प्रोग्राम को डेटा प्रोवाइड कर सकता है. एक तो हम लोगों ने देखा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके. तो जब मैंने आपको एग्जैक्ट एल या कमांड बताई थी या सिस्टम कॉल बताई थी, फंक्शन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हाउ डू वी पास द आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, कैसे देते हैं. और वो हम जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसी समय यूजर जो है वो डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 दे देता है. और वो डेटा होता किसके लिए? इस पेरेंट प्रोसेस के थ्रू वो चाइल्ड प्रोसेस के पास जाना है डेटा. तो एग्जैक्ट एल के थ्रू जो है जब वो ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप को ओवरराइट करता है विद द न्यू कोड, तो उस केस में जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी पास करने की मैकेनिज्म या एग्जांपल आपको बताया था. एंड वी हैव सीन द एग्जांपल कि अगर हम एक प्रोग्राम जो है उसको एक नंबर सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी विश कि दिस पेरेंट शुड क्रिएट अ चाइल्ड जो शुड ओवरराइट इटसेल्फ विद द कोड ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर. ठीक है. एंड देन whatever data we have provided to this program, the same data is being passed to this Armstrong checking program, and it is simply checking whether the supplied data from the parent side is a Armstrong number or not. So this kind of example we have already seen. तो ये मैकेनिज्म है जहाँ पे डेटा जो है इस तरीके से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा सकता है. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है P1 ये एक पाइप के थ्रू इसको जो है डेटा दे दी. तो इट विल राइट द डेटा एंड द अदर एंड विल रीड द डेटा एंड दिस एंड इज अवेलेबल टू चाइल्ड प्रोसेस. तो यहाँ पे ये डाटा रीड करेगा और उसको देखेगा. तो आई विल जस्ट शो यू वन एग्जांपल where we are making use of this pipe system call for the purpose of doing this kind of operation. Deliberately I have written this program for you so that we can understand कि how a process can supply some data, because otherwise आप यही समझेंगे कि पाइप से डाटा किसी और को दिया और हेलो मैसेज प्रिंट हो गया. तो मकसद जो है वो खाली हेलो मैसेज का नहीं है. वो तो एक एग्जांपल था कि हाउ वन प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग टू अदर प्रोसेस थ्रू पाइप. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आई हैव रिटन अ प्रोग्राम which is prompting you to enter some data, maybe some word, and then it is sending that word to some other process, and the other process is checking whether this sent string is a palindrome or not. ठीक है. तो हमने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जो है थ्रू पाइप एक डेटा दिया है और दूसरा प्रोसेस जो है ये चेक करके बता रहा है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं. तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस कोड कि यहाँ पे fp2 हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एरे ली है इंटीजर 2 एलिमेंट्स की, क्योंकि जब हम पाइप के अंदर fp को सप्लाई करेंगे तो पाइप के जो दोनों एंड हैं उसके जो पॉइंटर्स हैं वो किस में स्टोर हो जाएंगे? fp0 और fp1 उसके पॉइंटर्स होंगे. तो वो इंटीजर हैंडलर्स हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फर्स्ट टेकिंग अ मैसेज एंड दैट मैसेज वी आर स्टोरिंग इन str वेरिएबल, एंड देन वी आर क्रिएटिंग दिस pipe fp.
तो पाइप एफपी हमने चलाया तो एक पाइप क्रिएट हो गया, उसके बाद p इज इक्वल टू 4 से हमने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लिया. सो द सेम पाइप विच आई हैव हाईलाइटेड हियर will also be available to the child process, because we have seen earlier that there will not be any difference in the coding part unless and until child is overwriting itself with the use of exec system call. Otherwise the code will be the replica of the parent process only and both will be having the same code. तो यहाँ पे p is equal to 4 के साथ we are creating a child process. This condition will obviously will be true in case of parent. So what we are doing in case of parent, we are closing fp0, so we are closing the reading end. And in the writing end, this parent is transferring that string which you have just passed on to that parent, ठीक है, for checking for palindrome. तो वो उसने जो है fp1 जो उसका सीधा है वो कौन सा है, राइटिंग साइड है, और उसमें उसने 25 is the dimension of that string because we have declared this string as an array of 25 elements. तो उसको जो है उसने ट्रांसफर कर दिया, उस स्ट्रिंग को पाइप के अंदर इंसर्ट कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है, और उसके साथ ही इट हैज क्लोज दैट राइटिंग एंड बिकॉज इट हैज nothing extra is there which has to be inserted now. Only one string was there that has been passed on or that has been pushed to the pipe. Then what will happen? This segment is true only for child process. So what child is doing? It is first of all closing the writing end, but in the reading end, what it is doing? It is trying to read the data which has been pushed by the parent process. और उसको read किसमें कर रहा है? Eventually we are using str variable, but if you wish you can take some other variable also, ठीक है, not necessary str, क्योंकि आप read कर रहे हैं how many bytes, 25 bytes. From where? From the pipe, and that data you are storing in a variable, ठीक है. So you may take some other variable, not necessary that str if you are having any confusion, because indeed we are overwriting this str over here, but you should not get confused, because you may say that str was already having the word that is to be checked for palindrome, तो वो यहाँ पे already है. No, it is not there, but that is overwritten rather. वो overwritten किससे हो गया? तो जो पाइप में डाटा पास ऑन हुआ उससे ओवरराइट हो गया, ठीक है. So we may do this thing here. We can use S25, ठीक है, एक हमने और इसमें ले लिया, और जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन आपने यहाँ पे ये डाटा जो है S में पढ़ लिया, एंड हियर टू यू आर यूजिंग S. आपने वो S को जो है राइट किया पाइप के अंदर, एंड हियर यू आर कीपिंग इट एज इट इज str. तो अब ये दो अलग वेरिएबल हो गए. जो डाटा आपने रीड पेरेंट प्रोसेस ने लिया है वो S वेरिएबल में लिया है, सेम डाटा जो है पाइप के अंदर पुश कर दिया गया है. यहाँ पे उस डेटा को हम str वेरिएबल में रीड कर रहे हैं. सो नाउ दीज टू आर द डिफरेंट वेरिएबल्स. सो just to avoid the confusion I have taken another variable. और उसके बाद then we are doing the normal logic we have implemented in the child process, कि वो जो है इस str को जो उसने रिसीव किया है पाइप के थ्रू, उसको वो चेक कर रहा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है. तो वी आर यूजिंग दैट लॉजिक, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग एंड देन वी आर मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स. और अगर वो सिमिलर हैं तो इसका मतलब है रिवर्स और ओरिजिनल, तो हम कह रहे हैं पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है. तो इज इट क्लियर कि ये हमने एक पाइप को यूज किया है जस्ट टू पास सम इंफॉर्मेशन टू द अदर प्रोसेस. So now we can compile this program. तो जस्ट आई हैव शोन द रिजल्ट कि हम लोगों ने जो है पैलिन पाइप जो प्रोग्राम चलाया, तो उसने एक मैसेज के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया. द फर्स्ट टाइम यू हैव गिवन मलयालम व्हिच इज अ पैलिंड्रोम एक्चुअली. So what has happened inside the program? The program, after taking this string, must have created a child process,
then it has passed on that it has prompted you to enter the message upon which I have given Malayalam. Now it has been pushed through pipe to the child process. What child is doing, it is simply checking that Malayalam word, and when it finds that it is a palindrome, so it is printing the message palindrome. If it is finding any other word from the pipe which is not palindrome, so it is giving that that word is not palindrome. That is the second case that I have shown you on the screen. Okay. So by this way we have shared the data with the use of pipe. So see, objective of pipe is not to write the program like palindrome. ठीक है, ये हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि आप जब कोर जावा पढ़ते हैं तो आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखते हैं जो सी के लिए भी लिखते हैं, तो मैंडेट ये थोड़ी ना है कि आपको फिबोनाची सीरीज लिखना होगा। मैंडेट तो ये है कि यू हैव टू लर्न द सिंटैक्स एंड देन यू हैव टू राइट सम टिपिकल प्रोग्राम्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, व्हिच विल बी क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट अदरवाइज वी आर सॉल्विंग एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, कि उसमें हम पैलिंड्रोम चेक कर लें, कार्परेकर नंबर चेक कर लें, नीवन नंबर चेक कर लें, एविल नंबर चेक कर लें। तो ये तो आपको लॉजिक को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको ये सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पाइप मैकेनिज्म जो है उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिखाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब आपको ये बताएं कि जो पाइप सिस्टम कॉल है इसका इसका जो है कमांड फॉर्म क्या है। कमांड फॉर्म इसका ये वर्टिकल सिंबल है जिसको हम पाइपलाइन सिंबल कहते हैं। एंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग इट, व्हेन वी हैव टू पाइप द आउटपुट ऑफ वन कमांड फॉर इनपुट टू द एज इनपुट टू द सेकेंड प्रोग्राम सेकेंड कमांड, तो हम वहां पे इस पाइप को यूज करते हैं, पाइपलाइन सिंबल को यूज करते हैं। तो ये जो पाइप है जो हमने पाइपलाइन सिंबल के साथ यूज किया है, और या जो आपने पाइप के रूप में एक सिस्टम कॉल पढ़ी, ये बेसिकली जो है उन प्रोसेसेस के बीच में यूज किए जाते हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब वो दे मस्ट हैव सम रिलेशन एज दे मस्ट हैव सम कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर कॉमन होना चाहिए कोई, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। आप जब यहाँ पे पाइपलाइन सिंबल को यूज करते हैं फॉर टेकिंग और फॉर रीडायरेक्टिंग द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट टू द नेक्स्ट कमांड, तो आप वहां पे लॉजिकली डिसजॉइंट कमांड्स को नहीं अटैच करते हैं। यू शुड हैव सम लॉजिक की, और आप इन दोनों कमांड्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, साथ साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब साथ साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो इनके बीच में फ्लो ऑफ डेटा कौन फैसिलिटेट करता है, दिस पाइपलाइन सिंबल। और ये पाइप क्रिएट कहाँ होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बफर क्रिएटेड इन द रैम, वो डेटा जो है ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और इसकी लाइफ कितनी होती है इस बफर की, इट इज वैनिश्ड एज लॉन्ग एज दिस प्रोसेस आर terminated, and when these processes are terminated, when the output is displayed on the screen, the processes are terminated। तो इसका मतलब ये जो पाइपलाइन सिंबल है ये भी खत्म हो जाता है। अब आपको दूसरा स्ट्रक्चर एक बताते हैं विच इज कॉल्ड फीफो। अनदर नेम ऑफ द सेम फीफो इज नेम्ड पाइप। जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन between ordinary pipe and named pipe, I am taking now two terms, one is pipe and second is FIFO. So you try to understand if FIFO is a different concept than pipe, although it is a named pipe। ये named pipe के इसको हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि pipe कहने से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वैसे हालांकि पाइप और नेम्ड पाइप दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए यहाँ पे हम फीफो इसका नाम है, और दूसरा इसका नाम जो है वो नेम्ड पाइप भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नाम दे सकते हैं पाइप को। इस पाइप जो नेम्ड पाइप होता है और जो ऑर्डिनरी पाइप होता है, जो पाइप सिस्टम कॉल का भी हमने देखा या पाइपलाइन सिंबल के हिसाब से देखा, इन दोनों में क्या अंतर होता है। नेम्ड पाइप जो है दे एग्जिस्ट एज ए फाइल ऑन द हार्ड डिस्क, दे एग्जिस्ट एज ए फाइल ऑन द हार्ड डिस्क, वेयर एज pipe is a buffer existing in the RAM and the span of that buffer is confined to the life of that process, ठीक है, which is sharing that pipe। तो as soon as the processes are terminated, the pipe is also become non-existent, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेम्ड पाइप क्या है, नेम्ड पाइप का मतलब है कि हमने हार्ड डिस्क के ऊपर एक पाइप क्रिएट किया, तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ फाइल, ये फाइल की तरह क्रिएट होगा, ठीक है, और इसका एक नाम होगा नेम्ड पाइप है ये, ठीक है। तो अब इसको हम इस पाइप को क्रिएट करने के लिए, अच्छा इसके दो फॉर्म हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइप जो है उसके दो फॉर्म हैं, एक तो सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग के रूप में जो है पाइप सिस्टम कॉल के रूप में पाइप एंड ब्रैकेट, और दूसरा पाइपलाइन सिंबल के रूप में, कमांड के रूप में। तो कमांड के रूप में तो आई हैव शोन दिस एग्जांपल कि ls-l पाइपलाइन विद wc-l। इस कमांड में देखिए तो हमें जो टोटल काउंट है एंट्रीज की, जो ls-l नंबर ऑफ लाइंस आ रही थी वो 25 वो यहाँ डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ पे हमने एक कमांड का आउटपुट जो है दूसरे में रिडायरेक्ट कर दिया विद द यूज ऑफ
पाइपलाइन सिंबल। और वैसे ही हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको शो किया कि एक प्रोग्राम ने पाइप के थ्रू एक वर्ड जो है दूसरे प्रोग्राम को दिया और उस प्रोग्राम ने चेक कर दिया वर्ड कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, ये तो एक तरीका का पाइप हुआ। दूसरा जो है वो फीफो या नेम्ड पाइप है। नेम्ड पाइप का मैंने अभी बताया कि इट इज डिफरेंट, इट इज एग्जिस्टिंग ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, सो वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी सच पाइप, जब इस पाइप को हम क्रिएट करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, अ फाइल इज क्रिएटेड। जैसे इसको क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो मेक फीफो है। ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए रेलेवेंट ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने इसको फीफो इसीलिए कहा कि इसको आप फीफो कहिए। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन पाइप एंड द नेम्ड पाइप। तो हम नेम्ड पाइप और पाइप बार बार कहने के बजाय पाइप और फीफो कहेंगे। तो मेक फीफो से वी आर क्रिएटिंग अ पाइप जिसको हम नाम दे देते हैं प्रोज1। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोज1 नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। And what do we have at first place? The alphabet P. That indicates कि proj1 is a pipe file. ठीक है, ये pipe file है। मैंने कहा था शुरू में ही कि everything we say कि it's a file in Unix or Linux, whether it is directory or regular or device or link or now pipe, ये सब कुछ फाइल ही है। तो यहाँ पे ये एक जो फीफो है प्रोज1 जिसको हम नेम्ड पाइप कह रहे हैं वो क्रिएट हो गया और अल्फाबेट पी फर्स्ट प्लेस पे आने का मतलब है कि वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नेम्ड पाइप है। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि पहले वाले केस में जब हम पाइपलाइन सिंबल को एज ऑन द कमांड लाइन यूज करते हैं तो वहाँ दोनों कमांड जो होती हैं वो एक साथ रन होती हैं, उनके बीच में हम पाइपलाइन सिंबल को डालते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से कोई पाइप क्रिएट करते हैं तो हमने पाइप अब क्रिएट कर दिया, अभी इस पाइप का यूज नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक कमांड के आउटपुट को इस पाइप में इंसर्ट कर देंगे। ये एक स्टेप में आप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि दूसरा प्रोग्राम जो उसी समय उस डाटा को ले रहा, नहीं, जरूरत नहीं है। आपने क्या किया कि एक प्रोग्राम ने एक साइड से उस पाइप के अंदर कोई डाटा डाल दिया। नाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग सेपरेटली our next command, and that command is taking the data from where? It is taking the data from the proj1, उस पाइप से जिस पाइप में पहला प्रोग्राम जो है अपना डेटा डाल चुका है। फायदा क्या होगा, दो डिसजॉइंट कमांड्स जिनका आपस में कोई पैरेलल रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब हम कमांड कहते हैं तो उनके प्रोसेसेस होते हैं, तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये नॉन रिलेटेड प्रोसेसेस हो गए, ये अलग अलग कमांड्स चल रही हैं। तो इनका कोई आपस में जो है कोई कॉमन इनका एंसेस्टर नहीं है कि इसको हम माने कि ये जो है एक ही कॉमन एंसेस्टर के साथ को बिलोंग कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो डिसजॉइंट जो कमांड्स हैं या डिसजॉइंट जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में डाटा शेयर करने के लिए वी कैन यूज द मैकेनिज्म नेम्ड पाइप। वेयर एज जो रिलेटेड प्रोसेस हैं उनके बीच में डाटा अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो हम वो पाइप के थ्रू कर सकते हैं, वो नेम्ड पाइप के थ्रू हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम पाइप के थ्रू केवल और केवल रिलेटेड प्रोसेस में ही कर सकते हैं, डिसजॉइंट प्रोसेस में नहीं कर सकते। जबकि नेम्ड पाइप जो है दोनों जगह यूज हो सकता है, वहां पे भी और यहाँ पे भी। तो अब इसमें हम दिखाते हैं आपको कि सपोज इफ आई एम यूजिंग कैट ग्रेटर देन प्रोज1, आपने जो अभी पहले क्रिएट किया है पाइप, नेम्ड पाइप या फीफो, उसमें यू आर राइटिंग सम डेटा। तो सिंस कैट के बाद कोई फाइल नेम नहीं है तो व्हाट इज हैपनिंग, it is expecting you to type the data from keyboard, so I am typing the data from keyboard. MC of ITCA department. Now let me start another virtual terminal. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट टी करके एक नया वर्चुअल टर्मिनल स्टार्ट कर दीजिए। हम दूसरे टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द डेटा, व्हाट नेम आई केप्ट देयर। आप अगर स्विच करना चाहते हैं दूसरे वाले टर्मिनल पे तो आप ऑल्ट टिल्ड साइन यूज करके जा सकते हैं उस पर। तो यहाँ पे प्रोज1 रखा था, अगेन ऑल्ट टिल्ड साइन करेंगे तो यू आर कमिंग बैक टू द सेकेंड टर्मिनल। तो आपने कैट प्रोज1 किया, यू आर प्रेसिंग एंटर, सॉरी,
let me check what mistake I have committed there. एक्चुअली जिस जगह मैं था वो पाथ जो है कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट। हाँ, इट्स कमिंग नाउ। एक्चुअली मैं जो है दोनों टर्मिनल को जो मैं शेयरिंग आपको दिखा रहा था अलग अलग, उसमें जो पाथ था वो अलग था, क्योंकि यहाँ मैं रूट पे जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी वंस अगेन वी कैन सी कि टिल्ट साइन से व्हेन आई एम गोइंग बैक, तो यहाँ पे मैंने मदन मोहन लिखा और नाउ आई एम राइटिंग गोरखपुर। ठीक है, आई एम प्रेसिंग एंटर। Where do I write? I am writing to Proj 1, the pipe that I have created. Now tilde sign के साथ I am getting to second terminal and there I am getting the same message जो हम वहां से पास कर रहे हैं। तो ये तो चलो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम एक ही लैपटॉप पे दोनों वर्चुअल टर्मिनल से खोल के दिखा रहे हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे डाटा दे रहा है, लेकिन these two terminals may be different. They may be physically different when we are having a multi-user environment where different terminals are connected to the same Linux server and different users are sitting. So it may be possible that you may be sitting on terminal A and you are creating a pipe and you are writing something into that pipe, and if that pipe has been shared with other user, ठीक है, of course the other user has to have some appropriate rights over there, ठीक है, और उसके बाद वो उस पाइप से डेटा को उठा सकता है। तो अब क्या राइट्स उसके ऊपर हम यूज करते हैं या क्या राइट्स जो है पा सकते हैं, दैट विल सी कि जो हमारे पास डिस्प्ले आएगा उसमें हम आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। तो लेट मी मूव टू द ओरिजिनल टर्मिनल। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि जो एंट्री है करस्पॉन्डिंग टू पाइप, तो वी आर हैविंग टू पाइप्स। नाउ कमिंग टू द राइट्स ऑफ दीज पाइप्स। तो जैसे मैंने अभी कहा कि सपोज आई एम सिटिंग ऑन अ टर्मिनल एंड आई एम माय लॉगिन आईडी इज सपोज SPS ITCA and my friend is sitting on some other terminal and his login ID is Sunil ITCA, and suppose we are having a common group, so definitely I would like to share this file with Sunil। तो सुनील कब इसको शेयर कर सकता है? when he has appropriate rights over the group।
so that he may be allowed to come to my area और इसको इस फाइल को जो है अपने यहाँ इस यूज कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे जरूरी है कि इसके ऊपर अप्रोप्रिएट राइट्स होने चाहिए। तो राइट्स हम कैसे सेट कर सकते हैं कि जब हम पाइप क्रिएट करते हैं वी राइट mk fifo and we write let us suppose recreating it proj1 and with minus option I am giving suppose 777। अच्छा ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब लेट मी डिलीट दिस फाइल। तो ये फाइल क्रिएट हो गई पाइप। अब नाउ वी कैन सी द राइट्स। सो नाउ वी आर हैविंग 7 इंडिकेट्स की रीड राइट एग्जीक्यूशन। तो रीड राइट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। देन 5 इंडिकेट्स रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ओनली, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड अनदर 5 इज फॉर अदर्स रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो वो यहाँ पे आ गया। अगर इसको आप पिछली एंट्री से देखें तो देयर वी हैड RW एंड X वाज नॉट देयर, देन वी हैड RW माइनस एंड R माइनस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले उसकी परमिशन क्या थी 4 और प्लस 2 6, तो 6 6 और यहाँ पे 4, तो वो उसकी परमिशन थी 6 6 4। अब हमने क्या कर दिया 7 5 5 करके उसकी परमिशन सेट कर दी। एंड व्हाई डू वी सेट द परमिशन, बिकॉज इसी बेसिस पे जो है आप दूसरे यूजर को जो है अलाउ कर सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स को या अदर्स को, कि व्हाट काइंड ऑफ राइट्स दे कैन एंजॉय ओवर दीज पाइप्स। अब इसी पाइप का जो एग्जांपल है आप अलग अलग टर्मिनल्स पे ना देख के केवल अपने कॉमन टर्मिनल पे देखें। तो सपोज मैं फिर से इसमें दोनों पाइप्स को डिलीट कर देता हूं। आई एम डिलीटिंग proj1 and proj2 also, and now I am creating make fifo। एक पाइप हमने क्रिएट किया my fifo 1 के नाम से। दूसरा एक पाइप क्रिएट कर रहे हैं with the rights -m 600 और इसको हमने किया my fifo 2 नाम से। अब इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करके देख लिया कि एंट्रीज हमारी आई क्या है। तो 2 पाइप क्रिएट हो गए। पहला वाला जो है उसमें जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज थी तो वो 664 थी, तो उससे वो क्रिएट हुआ है। और दूसरा वाला क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली उसमें राइट्स दे दिए हैं तो 6 का मतलब है RW, और बाकी क्योंकि 0 कर दिया तो ग्रुप और अदर मेंबर्स को कोई राइट्स जो है इस पाइप के ऊपर नहीं मिले। अब इस पाइप का यूज जो है वो एक कमांड के थ्रू हम यहाँ देखते हैं कि वो कैसे होगा। सपोज आई एम एग्जीक्यूटिंग कैट माई फीफो 1। हम पाइप के कंटेंट्स को कैट कर रहे हैं। व्हेन वी कैट दिस डू वी गेट एनीथिंग? नो, बिकॉज पाइप में भी कुछ लिखा ही नहीं गया। तो अभी मैंने इसको क्या किया, इसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर दिया है कैट को। ठीक है, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, मेरा फोरग्राउंड फ्री हो जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करी माई फीफो 2, और इसमें जो है इसको मैंने अटैच किया विद ऑर्डरी पाइपलाइन सिंबल लगा के। देन आई एम राइटिंग wc-l। दिस कमांड आल्सो आई एम सबमिटिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो what will happen, this command will also not complete its execution. Why? Because cat my fifo1 was supposed to display the content of my fifo1, so nothing has been written so far in that pipe, so nothing will be nothing will be displayed on the screen. In the second command too, what we are doing is कि second pipe के अंदर भी उसके contents को हम wc-l को ट्रांसफर कर रहे हैं जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैट माई फीफो 2 अभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि उसमें डेटा नहीं है, तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। और ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी पाइप से जिसमें डेटा लिखा नहीं गया है अगर उसके कंटेंट्स को रीड करने की कोशिश करेंगे तो नथिंग विल हैपन एंड द रीडर विल सिंपली स्टिक टू दैट रीडिंग प्रोसेस and it will come out of that reading process only when something is written in the pipe। तो दोनों ही कमांड जो हैं वो बैकग्राउंड में सबमिट हो गई, लेकिन दोनों ही जो हैं रन अभी नहीं हो पा रही। अब रन करने के लिए आई एम गिविंग थर्ड कमांड ps-a। आई एम यूजिंग पाइपलाइन सिंबल, आई एम यूजिंग t, देन आई राइट my fifo1
my FIFO2, and then again pipeline symbol, then using grep, and then we are searching something, maybe हम उसमें कोई ऐसी एंट्री जो है देख लें जो फर्स्ट प्लेस पे जिसमें डी आता हो, ठीक है। तो आई एम यूजिंग कैरेट साइन एंड अल्फाबेट डी, and then I am leaving it, and then I am again attaching it with WC minus है। तो आप देखिए कि इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, दोनों पाइप में भी कुछ लिखा नहीं है, दोनों के कंटेंट को दोनों को हमने जो है कैट करने की कोशिश करी, दोनों के कंटेंट को डिस्प्ले करने की कोशिश करी। तो डिस्प्ले तो होगा नहीं क्योंकि उसमें लिखा नहीं गया, तो कैट जो है वो लूप पे चला जाएगा, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। दूसरे वाले में जब कैट को कंटेंट मिल जाएंगे, माई FIFO2 में जब पाइप में कंटेंट आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, बजाय डिस्प्ले करने के वो WC-L को सप्लाई कर देगा, और WC-L क्या करेगा, उसके जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं वो काउंट कर लेगा। तो पहले का आउटपुट क्या आएगा, माई FIFO1 क्या करेगा कि जो कुछ भी कैट माई FIFO1, जो कुछ भी आप माई FIFO1 में डालेंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जो कुछ भी आप माई FIFO2 में डालेंगे दैट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन in the second command, rather the count of total lines of my FIFO2 will be displayed on screen। तो पहले से कंटेंट आएंगे, दूसरे से कंटेंट की जगह नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। अब कमिंग टू द थर्ड प्लेस, यहाँ हम एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं PS-A, प्रोसेस स्टेटस ऑल, सारे प्रोसेसेस का जो है हम स्टेटस डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑन मॉनिटर। उसके बाद T कमांड हमने लगाई है, T my FIFO1 my FIFO2। कैन यू टेल मी व्हाट फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग T ओवर हियर? Hello, anyone? Nobody can Yes, answer sir. what is the purpose of T? हाँ बताइए। बताइए, कोई बताए कि T कमांड किस लिए यूज होती है और यहाँ पे उसका पर्पस क्या है? मालूम है कि नहीं? देखिए T कमांड का पर्पस ये है, बड़ा डिस्करेजिंग है, क्या करोगे सीख के इसको ऐसे फिर? किसी भी पाइप के कॉन्टेक्स्ट में पाइपलाइन सिंबल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड को सप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कभी ये होता है कि इसके बीच के जो भी डाटा यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको बीच में ही कैप्चर करके हम डिस्प्ले कर लें कहीं पे, तो हम यहाँ पे T लगा देते हैं और यहाँ पे CMD1 लिख देंगे। तो ये T किस तरीके से बिहेव करता है, एक तरीके से ये पाइप में आपने लगाया T, तो अगर पाइप जो है वो यहाँ से इसमें वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है और यहाँ आपने T लगाया, तो आपने क्या किया कि वाटर को एक आउटलेट से निकाल लिया जो इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर तो जाएगा ही लेकिन इधर भी आएगा। तो वही यहाँ पे है, CMD2 से डेटा जो है CMD1 को हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम T लगा देते हैं तो वो डेटा स्क्रीन के ऊपर भी आ जाता है। अदरवाइज तो क्या होना चाहिए, CMD2 का डेटा केवल CMD1 पे चला जाना चाहिए और CMD1 को उसके ऊपर ऑपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CMD2 का जो डेटा CMD1 को जा रहा है उसकी एक कॉपी डिस्प्ले भी हो जाएगी ऑन स्क्रीन, और उसके बाद फिर CMD2 जो है जो डाटा उसको मिला है उसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो T जो है बीच में इंटरमीडिएट कैप्चर करने के लिए है, जो डाटा एक कमांड से दूसरी कमांड को जा रहा है तो T क्या करेगा, उसको इंटरमीडिएटली बीच में कैप्चर कर लेगा। अब अगर आप इसके आगे फाइल लिख देते हैं, फाइल का नाम, तो जो कुछ स्क्रीन के ऊपर आना है वो कहाँ चला जाएगा, फाइल में चला जाएगा। तो अभी आप उस कमांड पे वापस आइए जो हम लोगों ने कमांड यूज करी है। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, यहाँ पे जो हमने T के बाद क्या लिखा, माई FIFO1 माई FIFO2, इसका मतलब है कि जो LS-L का आउटपुट है दैट वी हैव सप्लाइड टू टू फाइल्स, one is my FIFO1 and my FIFO2, so they are the replica of each other, and what do they have,
दे हैव द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी, क्योंकि ls माइनस एल क्या है, इज द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी इन लॉन्ग फॉर्मेट। तो जो डिस्प्ले अगर हम खाली ls माइनस एल लगाते और इसके आगे कुछ भी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो ना लिखते, तो व्हाट आई एम सपोज टू गेट, आई एम सपोज टू गेट द कंटेंट ऑफ sys कॉल डायरेक्टरी ऑन द स्क्रीन। लेकिन अगर हमने उसे पाइपलाइन सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब वो कंटेंट वी हैव ट्रांसफर्ड टू टू फाइल्स आल्सो myfifo1 एंड myfifo2। ये तो टी से हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन अदरवाइज क्या हुआ, यही आउटपुट जो है ls माइनस एल ये हमने grep को दे दिया। और grep कमांड क्या कर रही है, इट इज सिंपली सर्चिंग फॉर द अकरेंस ऑफ माइनस साइन एट फर्स्ट प्लेस। जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें अगर आप कैरेट लगा के माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर सर्चिंग दिस कैरेट, दिस माइनस साइन। कैरेट इंडिकेट्स कि यू हैव टू हैव द अकरेंस ऑफ दिस अल्फाबेट एट फर्स्ट पोजीशन। तो ls माइनस एल में फर्स्ट पोजीशन पे माइनस कब आता है, व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग द कंटेंट, व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑफ एनी डायरेक्टरी। तो जो फाइल्स होती हैं रेगुलर फाइल्स उनकी उनमें क्या आता है, माइनस आता है। जो डायरेक्टरी फाइल्स होती है उसमें क्या आता है, डी आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैरेट माइनस कर दिया, क्योंकि सिस कॉल डायरेक्टरी के अंदर सारे मेरे सिस्टम कॉल प्रोग्राम्स हैं सी लैंग्वेज के लिखे हुए, सब रेगुलर फाइल्स हैं। तो हम ये चाहते थे कि वो सारी की सारी फाइल जो हैं उनका जो डिस्प्ले होगा यहाँ पे वो myfifo1 और myfifo2 में कॉपी भी हो जाए और एज ए इनपुट नेक्स्ट ग्रेप को सप्लाई हो जाए। और ग्रेप ने क्या कर दिया कि उन सारी रेगुलर फाइल की काउंट कैलकुलेट कर ली, क्योंकि वो जो ग्रेप माइनस कर रहा है वो क्या कर रहा है, उन सारी लाइंस को डिस्प्ले करेगा जहां माइनस है। इसका मतलब केवल रेगुलर फाइल्स वाली, उसमें डायरेक्टरी फाइल्स को या ब्लॉक ओरिएंटेड कैरेक्टर ओरिएंटेड को इग्नोर करेगा। और wc माइनस एल क्या करेगा, उन सारी फाइल्स की काउंट, उन सारी फाइल्स को काउंट कर लेगा और काउंट करके बताएगा कि ये जो है इतनी रेगुलर फाइल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ वी कैन रन दिस। लेकिन इसको रन करने से पहले आप ये बताइए कि जब हम ये करेंगे, जब ये कमांड चलाएंगे तो व्हाट इज हैपनिंग, इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बीच में ही टी की वजह से myfifo1 को डाटा मिल जाएगा और myfifo2 को भी डाटा मिल जाएगा। तो myfifo1 तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, लेकिन कैट जो है वो वहीं रुका हुआ है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा myfifo1 को, उसमें डाटा नहीं है। तो जैसे ही myfifo1 को इस कमांड से डाटा मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस जो है myfifo1 में डेटा पा जाएगा और कैट क्या करेगा, उसे कंटेंट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद myfifo2 को भी डाटा मिल गया, तो जो सेकेंड प्रोसेस बैकग्राउंड का है वो क्या करेगा, उन कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा, लेकिन वहां पे wc माइनस एल से क्या करेगा, उसकी काउंट को कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड कमांड जो बैकग्राउंड की है वो काउंट को डिस्प्ले कर रही है। और उसके बाद फिर ये ग्रेप पे आ जाते हैं और यहाँ पे रेगुलर फाइल कंटेंट्स का आता है। तो नाउ वी कैन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। तो ये जो कंटेंट ऊपर आए हैं, ये कंटेंट किसकी वजह से आए हैं, जो हम लोगों ने पहले कमांड लगाई थी उसकी वजह से आए हैं। 27 किस वजह से आया, क्योंकि जो सेकंड आपका जो पाइप कमांड थी makefifo2, जिसको हम लोगों ने रन किया था cat makefifo2 सॉरी cat myfifo2 और उसके बाद पाइपलाइन सिंबल wc माइनस एल, तो वहां हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर दी थी, काउंट कर दी थी। तो उसमें तो सारी फाइल्स आ गई जो भी करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स में था, तो यहाँ 27 काउंट आ गई, इसलिए सेकंड कमांड की वजह से। फिर थर्ड जो एक्चुअल कमांड हम रन कर रहे थे, जहां से myfifo1 और myfifo2 को डाटा मिला था, उसमें क्या था, ls माइनस एल पहला था, पाइपलाइन लगा के फिर था t myfifo1 myfifo2, तो उनको जो है डेटा सप्लाई हो गया वही ls माइनस एल का। फिर थर्ड प्लेस पे क्या था, ग्रेप कैरेट साइन के साथ माइनस, तो हमने वो सारी एंट्रीज जो है उसमें से चुनी जिनके आगे माइनस साइन लगा है, और उसके बाद आगे क्या लगाया था wc माइनस एल, तो हमने वहां ये काउंट कर लिया कि रेगुलर फाइल्स कितनी है, क्योंकि जिनके आगे माइनस साइन लगा वो सब क्या है, रेगुलर फाइल्स हैं। तो यहाँ पे 27 जो आपको एंट्री मिल रही है वो आपकी सेकंड जो बैकग्राउंड कमांड थी उसकी वजह से मिल रही है, और 24 आपको किस लिए मिल रही है कि आपने जो थर्ड प्लेस पे जो आपने कमांड एक्चुअल एग्जीक्यूट करी है ये उसका आउटकम है 24। ठीक है, उसका नेट आउटकम 24 है। लेकिन उसके पहले जो 27 मिला और उसके पहले जो कंटेंट डिस्प्ले हुए ऊपर, ये सब किस वजह से हैं, ये सारे कंटेंट जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट करता जा रहा हूँ ये सब की सब क्या हैं, पहली कमांड से मिले हैं, दैट इज cat myfifo1। दूसरी कमांड से क्या मिला, cat myfifo2 पाइपलाइन सिंबल wc माइनस एल 27 मिला, क्योंकि वहां पे 24 रेगुलर फाइल हैं और 3 उसमें कोई और फाइल्स की एंट्रीज हैं, जिसमें 2 तो मुझे सीधे ही दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे myfifo1 और myfifo2 2 एंट्रीज हैं करंट डायरेक्टरी में। तो ये तो दो फालतू ऐसे ही हैं, 24 दो 26 तो ऐसे ही हो गई, और इसके ऊपर स्क्रॉल करके कुछ निकला होगा उसमें कोई डायरेक्टरी वगैरह भी होगी, तो टोटल जो है 27 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 24,
24 इसलिए मिला क्योंकि हमें रेगुलर फाइल जो है इसमें केवल .c के जो प्रोग्राम्स होंगे या जिनके आगे माइनस साइन लगा होगा फर्स्ट एंट्री पे वो केवल 24 है, और उसके साथ ही ये प्रोग्राम जो है, ये जो कमांड सीक्वेंस है, ये कंप्लीट हो गया। तो इज इट क्लियर? आप इसको जो है ट्राई करिएगा। आई सप्लाई द कंटेंट्स, मैं आपको इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूँगा, लेकिन इसको please पढ़ो and please try to respond. I mean, if you are not responding, what's the use of conducting the classes? I would have shared all the material to you because आप तो उस मटेरियल को भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। दैट्स वाई ये जो आपका अभी क्विज कंप्लीट हुआ है, इसमें आई हैव नॉट गिवन एनी, आई मीन फ्यू क्वेश्चंस आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम माय साइड, एंड दैट इज वाई द आउटकम इज कि none of you have got more than 6, I suppose, marks in the quiz third. तो आप ये इमेजिन कर लें कि दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ आई मीन लेसन टू मी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्विज आई एम आस्किंग, एंड when I am creating any question from my side which is not available over the internet, then probably you cannot respond that since you are not studying. Otherwise उसमें जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने सब क्लास में पढ़ाए हुए थे। डबल स्क्वायर ब्रैकेट का एक मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कोलेटिंग सीक्वेंस में अगर स्ट्रिंग का कंपैरिजन होना है तो व्हाट वी कैन यूज। तो मैंने उसमें आपको जब क्लास में शेल प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था तो मैंने उसे बताया था कि डबल ब्रैकेट यू कैन यूज, एंड दैट्स अ सिंगल एग्जांपल वेयर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट you can make use of symbol greater than or equal to. अदरवाइज जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो अव्वल तो वो स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। अगर यूज होगा तो मतलब उसमें इस टाइप का नहीं लग सकता ये ग्रेटर देन वगैरह, उसमें क्या लग सकता है -n -z, यही कुछ ऑपरेटर्स हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। और स्ट्रिंग को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रिंग कंपेयर के जो एक्चुअल ऑपरेशंस हैं वो केवल दो ही हैं, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू। लेकिन अगर हमें स्काई कंपैरिजन करना है कि कौन सा, जैसे जफर जो है इज ग्रेटर देन सूरज, क्योंकि z की जो स्काई वैल्यू है इज ग्रेटर देन s, जो पहला अल्फाबेट है सूरज का, तो इसलिए जफर जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन सूरज। तो ये जब चेक करना होगा तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस, एंड दिस इज द एक्सेप्शनल केस वेयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ ग्रेटर देन। अदरवाइज न्यूमेरिक जब आप कोई कंडीशंस कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स की, जैसे आप लिखते हैं $a, तो यू राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। $b, यू नेवर राइट ग्रेटर देन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। वो तभी होता है जब आप डबल ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, सिंगल ग्रेटर देन में तो ये लगता ही नहीं। वहां पे आपको ये अल्फाबेट जो अल्फा न्यूमेरिक आपके जो कंपैरेटिव ऑपरेटर हैं, GE फॉर ग्रेटर देन, GE फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, GT फॉर ग्रेटर देन, ये सब यूज करने पड़ते हैं। तो ये मैंने क्लास में बताया था, एंड डेलिबरेटली आई हैव आस्क्ड, एंड I believe none of you have correctly responded for that question, ठीक है, क्योंकि वो किसी ने सही नहीं किया। इसका मतलब है किसी ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि when I was teaching that subject or teaching that topic, so that time especially I gave stress that when you have to write a program for sorting of strings, and there you have to make the comparison of string as per ASCII value, then you have to make exceptionally this use double square bracket. Otherwise we use either this or we are using this type of condition in bash programming. डबल स्क्वायर ब्रैकेट केवल उसी केस में हमने यूज करना बताया था, और वो मैं जस्ट चेक भी करना चाहता था कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट क्लास अटेंटिवली, एंड यू रिमेंबर कि व्हेन वी हैव टू मेक द स्ट्रिंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन ASCII वैल्यू, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस डबल स्क्वायर ब्रेसेस। सो आई बिलीव कि मैंने बार बार इस बात को रिपीटेडली कहा है कि we should not study merely for study purpose or thinking that since this subject is being taught as part of this semester, that's why we should study. No, you do never know कि how much this will be useful for you in future. तो अगर हम इस तरीके से पढ़ें कि केवल टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं। So it's very discouraging that when I am asking any question, you are not responding. None of you, even a single student is not responding. So that is very discouraging. उतना पढ़ाने का क्या मतलब है? वो कथा की तरह आप अपने बेडरूम में बैठे हुए या सोते हुए सुन रहे हो उसको, उसका कोई पर्पस थोड़ी नहीं। एनीवेज आई एम एंडिंग माय लेक्चर, और मैं आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा क्योंकि आई बिलीव कि वही ज़्यादा अच्छा तरीका है।